मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। The legend of Awadh, the Ganga Jamuni Tehzeeb, resides here. Interfaith harmony, communal amity, phrases for all season but one. Political season. Because every 5 years, Uttar Pradesh turns to polarized Pradesh. ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। Many view the state assembly elections of Uttar Pradesh as a mid-term referendum to the Modi government at the centre. But that aside, with its mammoth 403 seats, the assembly elections of Uttar Pradesh could very well be the biggest political prize after the general elections in the country. The BJP now seeking a re-election. The polarization card is being played out in full strength, could benefit both the BJP and the Samajwadi Party. A buzzword on ground, HM, Hindu-Muslim. How deep will it cut is the big question. Caste is a big factor because of Zamindari system and others, whereas UP has a history of communal tensions, but caste is very dominant. So the moment the overground polarization and Hindutva element starts subsiding, it goes underground, and the caste element which is there, it comes up. And the moment that happens, the BJP is in trouble, because it needs that element of polarization to create that Hindu monolith, that those who may be out of the BJP's caste matrix, they start joining the BJP, and that's when the BJP usually does well. The perfect example is Kalyan Singh. Kalyan Singh, in the wake of Mandal and Kamandal, could become what Kalyan Singh was and could bring BJP to a level because both were operating together. One, the caste element, Mandal and Kamandal. And that provided a perfect glue. The Hindu monolith was ready, BJP did well. 2014, 17 and 19. I think it has lasted long enough now. I think it has lasted long enough. People are down to caste. If there is an undercurrent. And now I think this election will determine how potent that undercurrent of Hindutva is. Till the polling booth, people are talking about issues, caste and several other divisions. Provided they go inside and become Hindus at the time they are pressing the button. Otherwise, I'll say that this election is not going to be totally decided by community. It is going to be decided by caste. And I think that's going to be the most decisive factor, which will make every seat a struggle for every political party in this election. Is Mandir an issue this time at all? See, Mandir is something which the BJP, I think it peaked. Mandir again peaked. They didn't cash that check. It peaked even in the time of L.K. Advani, if you recall, that by 2009 L.K. Advani was not the same L.K. Advani of the Rath Yatras. The Mandir as a demand was around, but it had lost its stridence or traction quotient. Same thing is happening. The Mandir element that the Prime Minister Modi has laid the foundation, the Mandir is being prepared. Till the time the Mandir is ready as a tangible asset for people to see and they come to see the temple, I think temple is not that. It is, but definitely it's not. It's one layer of Hindutva, which is there as a reminder in the minds of the public. But is it swaying the vote? It is not. I think Prime Minister Modi has kept the construction of the temple and it being ready for his 2024 battle. हमने 2014 में एक मोबाइल रिपेयरिंग का जो है कोर्स किया था 3 महीने का, और जब से मोदी जी की सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, मेरा नौकरी लगा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में एज ए ट्रेनर। मैंने ट्रेनिंग दिया बच्चों को और ट्रेनिंग के बाद आज प्रमोशन हुआ है। तो आज मैं पूरा यूपी देख रहा हूँ और यूपी में आज मैं जो है कौशल विकास योजना के तहत मैं लोगों को नौकरी दिलाता हूँ और उनको ट्रेनिंग कराता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एकदम खुश है। काम बोलते हैं, काम के मुद्दे पर 5 साल में विकास हुआ है, इन 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। ये भाई इसमें राशन दिया जाए और कुछ नहीं देगा, नौकरी नहीं निकली, बेरोजगारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि बहन बेटी सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? ये हाथरस में देखा आपने कांड, पेट्रोल से लड़की जलाई गई है, क्या सुरक्षित है? इस बार क्या हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहेगा? ये तो बीजेपी की पार्टी आती है तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रखते हैं, इसलिए मुसलमान वोट नहीं दे रहा।
मगर कुल मिलाकर बात यह है कि सपा सरकार आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। भैया के खाते में 300 आ रही है उनके, उसको कोई रोकने वाली नहीं भैया को। उनका हिंदू मुस्लिम कौन करता है? हिंदू मुस्लिम भी बीजेपी वाले करते हैं, यानी कि हम हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा हैं, हम नहीं करते। मगर सरकार ये बीजेपी की है, ये हिंदू मुस्लिम कर रही है आके, तो इसलिए खिलाफ है। As we traverse through Uttar Pradesh, the political landscape is booming with the rhetoric of polarization. मैं कहता हूं जो भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जो भी गुंडागर्दी करके उत्तर प्रदेश को तहस नहस कर रहा है, चरस की सप्लाई, नकली नोट, ये सब बातें 20% में, गुंडे उंडे कुछ छूट बचने वाला नहीं राज्य के अंदर, एक भी इनको छूट नहीं है। कोई हम मुसलमानों पर नहीं बोलते हैं कि मुसलमान भी अच्छे हैं, बहुत एक से अच्छे हैं, बहुत लोग हैं, और सब बेटी बेटियां, और मन भी बनाया है कि इस बार बीजेपी को वोट देंगे, हमारा परसेंटेज बढ़ेगा मुसलमानों में इस बार, और वोट भी गिरेगा। They don't want to give the Muslim the rightful share in politics. Our fight is for hissadari. What these so-called parties which you have mentioned, or even Samajwadi Party, they want Muslim to ensure that okay, आप दरी बिछाओ, and we don't even want to utter your name. When was the last time Akhilesh or BSP leaders uttered the word Musalman? What is wrong? Will skies will fall if you utter the word Musalman? Is this not othering of the Muslims? You are even afraid to use that word. You don't even use that word. What sort of justice will you do? सवाल जाति और धर्म का नहीं है, सवाल ये है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। Communal politics appears to be the key pole plank, simply because this strategy has worked for parties. Past data suggests that they have benefited immensely from votes polarized on the basis of community. As we reported this election, the communal divide was that proverbial line in the sand. Strangely, the line blurred when it came to business. आप ये मानिए कि हमारे जितने भी आर्टिजन्स हैं लखनऊ चिकन हैंडीक्राफ्ट में 99% दे बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, और शायद वो ना हो तो हमारे रोजगार बंद हो सकते हैं। These are traders in Lucknow, traders of the famous Lucknowi chicken work and other handlooms. Most here supporters of Baba, the nickname for Yogi Adityanath. But when it came to business, critical of the government. जब से जीएसटी और ये सब चीजें आई हैं, उससे हम लोग को बहुत तकलीफ है, लिखा पढ़ी का बहुत बड़ा एक कार्य बढ़ गया है हम लोग को, उसके खर्चे बढ़ गए हैं, और ऐसे पीरियड में जिसमें इनकम लोगों की कम हो रही हो, उसमें ये खर्चों का बढ़ना और लिखा पढ़ी का होना, ये हम लोग के लिए बहुत कष्टदायी है। ओडीओपी की स्कीम जो सरकार लाई है, उससे फायदा तो हमें तब मिलेगा जब बाजार में पैसे का वितरण होगा। जब बाजार में पैसे ही नहीं होगा तो हम ओडीओपी लोन लेके माल किसको बेचेंगे? हम खुद तो पहन नहीं लेंगे और ऊपर से अपने ऊपर लोन का भार बढ़ाएंगे। For them, Hindu-Muslim is not an issue this election. हम लोग सब एक गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, और हम सब एक दूसरे से इतना ज्यादा घुले मिले हुए हैं, एक परिवार जैसा सब होता है, और इस चीज में हम लोग अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो मैं पर्सनली नहीं सही समझता हूँ, इस चीज में कोई भी सोच होनी चाहिए। These bunch of traders rely on their neighboring district of Barabanki for a regular supply of handlooms. इसमें चैन वाइज है, माल तैयार होता है, कच्चा माल आता है, रंगाई होता है, उसमें किसान लोग ज्यादातर करते हैं ये, क्योंकि रंगाई का काम परमानेंट नहीं होता है। उसके बाद जब रंगाई हो जाती है तो बुनाई होती है, बुनाई होने के बाद गिठा लगती है, गिठा लगने के लिए आसपास के गांव में जाता है, गांव में गिठा लगने के बाद फिर जो है वो पैक होके तब जहां सप्लाई होना होता है ट्रेडर्स के पास जाता है, वहां से बिक्री हो जाती है। This is Zaidpur in Barabanki district, predominantly Muslim dominated, with more than 70% involved in this cottage industry of spinning yarn, handlooms.
यहाँ 70% है। 70% लोग सिर्फ बुनकर का यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे है, सिर्फ बुनाई का काम। हाँ, बुनाई का काम होता है। हथकरघा भी है यहाँ। हाँ, हथकरघा भी। कब से हो रहा है ये कम से हम लोग पैदा नहीं हुए, कब कौन जमाने से आया हो करते हुए, तब से ही। हाँ, जब से। बिजनेस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? अरे सब नीचे घुस गया, नीचे कम हो रहा है। हाँ होगा, जो है जो जेब में पैसे हैं वो भी खत्म। अब कहाँ से लाएं, तो लड़कों को खिलाएं और पिलाएं, क्या करें। जो हमारा पुश्तैनी काम था वो बचा ही कहाँ है अपना? अभी नहीं बचा है, बिल्कुल भी नहीं। एकदम मैम, एक तो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही, और जो गवर्नमेंट के मैम धागे पे मिलती थी पहले, जो धागे पे सब्सिडी मिलती थी यूपीए सरकार में या और भी सरकारों में मिलती थी, वो नहीं मिलती है मैम अब। और जो करगा विभाग या जो करगा मंत्रालय करगा विभाग, उस पर जो नई नई स्कीमें आती हैं, नई वो डायरेक्टली बुनकरों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और उससे पहले यहाँ हथकरघा भी थी, लेकिन जो है जब अखिलेश सरकार ने 150 रुपए बिल किया तो हथकरघा हट गई और लोगों ने पावरलूम लगा लिए। पावरलूम में थोड़ी इनकम ज्यादा थी, लेकिन आज हाल ये है कि लोग पावरलूम बेच रहे हैं क्योंकि वो बिल ही नहीं दे पाएंगे, बिजली का बिल ही नहीं दे पाएंगे, और योगी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। For them, they are struggling to make ends meet. Like the traders, they want bhaichara for their businesses to run, but feel they are being targeted. बुनकर लोगों का ये पूरा काम नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों की गलतफहमी है, इसलिए से सब्सिडी बहाल नहीं हो रही। आपको लगता है क्योंकि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है इसीलिए सब्सिडी नहीं मिल रही है? हमको तो यही लग रहा है, क्योंकि ये जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो सेलेक्ट हुआ है, हथकरघा विभाग सेलेक्ट हुआ है, उसके ऊपर जिस तरह से ध्यान देना चाहिए उस तरह से नहीं दिया जा रहा है। Journalists are a jaded lot. You see too much, you hear too much. It numbs you. But every now and then, there will be that one person that will break your heart. Hear this old man. Sold his only loom to get a cataract operation. हमारे पास एक लूम था, वो बेच के खा लिया, आँखें खुलाया, पेट भरा था। अब हमारे पास कुछ नहीं। जो समस्या है यहाँ बिजली की बहुत समस्या, मान लो लाइट है, बिजली का लूम वाला जो मामला है ये बड़ा अहम है। गरीब आदमी न ले पे घरों बेचे। चाचा आपके पास एक लूम था आप कह रहे हैं? हाँ, बेच लिया। बेच दिया? खोलवाया 7,000 रुपया आँखी में खोलवाई लागी, और बाकी खान बच्चे हैं। कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा है? आँखें, हाँ का ऑपरेशन, हाँ सीमा नहीं दिखाई देते, सीमा दिखाई देते। तो अभी लूम बेच दिया है? हाँ, बेच लिया। Away from the politics of polarization, away from the rhetoric, the screaming political rallies, the screeching headlines, when you actually talk to members of both communities standing on different sides of this deeply entrenched communal divide, they're very basic issues. Rozgar is a word that we catch very often. Their demands, basic, better living standards, a better way of life. Barabanki, with its 6 seats, goes to election on the 27th of February in the 5th phase. This is also where for the first time you see Congress in the game. On a single seat in a poll landscape that is clearly bipolar, BJP versus Samajwadi Party. The reason, not so much the party, but the candidate. PL Punya's son, Tanuj, contesting from Jaipur. PL पुनिया जी जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने अपनी कर्मभूमि जो है वो बारांकी जिले को बनाई और पहला चुनाव वो लड़े यहाँ से। फिर उसके बाद वो लोकसभा से सांसद भी यहाँ से चुने गए और लगातार वो जिले में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनका एक जो व्यवहार, खुद का व्यवहार है, उसकी वजह से लोगों का उनसे जुड़ा हुआ, उसमें हर जात हर समुदाय के लोग शामिल हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को आप ये कह सकती हैं जिले में उनके नाम पर, कांग्रेस के नाम पे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन PL पुनिया जी की वजह से काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी वोट भी उनको मिलते हैं। Non-Jatav Dalits this election have become a case study for many poll analysts. Where will they vote is the big question. As Jatavs, mostly still with the BSP and Mayawati, in 2017,
Most non-Jatavs had gone with the BJP. Does the party still have its vote bank intact? मोदी की जय जयकार है, जो मतलब राशन दे रहा है, तेल साबुन दे रहा है, अतिक परेशानी है, फायदा है उनकी। मोदी को पसंद करते हैं? हाँ, मोदी पसंद है, सब लोग पसंद है मेरे। पर क्योंकि राशन जो दिया है उसके लिए सरकार पसंद है। हाँ, लड़का पढ़े लिखे पढ़े हैं, नौकरी चाकरी नहीं मिली है कहूँ। और 5 किलो राशन मिलता है, ठीक है, मिलता है, हम कोई परेशानी नहीं है हमको। लेकिन कहा मतलब हमको नौकरी, बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, मजदूरी परमानेंट तो आए ना, सरकारी तो आए ना। आज लगा 10 दिन घूम रहे हैं, 4 दिन लग गया तो खा रहे हैं। बस यही परेशानी है, और कौन परेशानी है? हमारे पास कोई परेशानी नहीं है। यही परेशानी है कि हम बेरोजगार हैं। पैसा जमीन का आता है सबको, हमारे पास जमीन नहीं तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बहुत खुश है, कम से कम मतलब सिलेंडर भरवाना होता है तो लकड़ी से खाना पक जाता है। और जैसे कि 5 किलो और राशन मिलता है तो अपना मिलता ही नहीं, मान लो। इससे हम और खुश हैं। मतलब और खुश है कि नहीं है? हाँ, खुशी तो बता रहे हैं ये। मतलब इसे 500 का सिलेंडर था तो मतलब लकड़ी कभी जली नहीं। अब 1000 का सिलेंडर है, लकड़ी जल रही है, औरत गाली दे रही है क्योंकि कमाई भी ज्यादा है। ऐसे 200-250 की मजदूरी लग जाती थी, अब कम से कम 50-100। राशन से खुश है? राशन से बहुत खुश है क्योंकि हमको मिलता ही नहीं। आपको नहीं मिलता? From rural Barabanki to the town, the hot button topic, चुनाव। मोदी जी ने अभी हाल में ये बताया है कि सालों से हम लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। मतलब गोबर से अंडे पाथे जाएंगे और नौजवानों के लिए पकौड़ा के बाद दूसरा रोजगार। तो रोजगार के सवाल पर भी ये साफ नहीं है, ये भूख के सवाल के ऊपर साफ नहीं है, ये आपके जनता के हित में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ही काम कर रहे हैं। बस बाराबंकी में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। आप जिधर जाइए, जिस गली की तरफ जाइए, सब तरफ गलियां बन रही, सब तरफ रोड बन रही है, सब लोग तरक्की कर रहे हैं। बस एक छोटा सा मुद्दा है, बंदर बहुत है यहाँ। तो सोच के लाए थे लैपटॉप मिलेगा, किसी छात्र को लैपटॉप मिला, किसी को रोजगार मिला, किसी को नौकरी मिली, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? ये सारे मुद्दे जो हैं, अगर यही कह के लोग आए थे ना सरकार में, तो ये सरकार नहीं करेगी तो किस पे आरोप लगेगा? आम जनता पे आरोप लगेगा कि सरकार पे आरोप लगेगा? विकास हो चाहे जो बहन जी ने शेड्यूल तय किया था उसको आज की डेट में ना भाजपा कर पा रही है और ना समाजवादी पार्टी। और कानून व्यवस्था के मामले में आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बहन जी ने अपने सांसद को आवाज पे बुला करके उसको गिरफ्तार कराने का काम किया था, ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कर सकती है, क्योंकि इसके अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती है। Elections are a peculiar time. Its narrative can be all-consuming. Divisions that were never there suddenly cut deep. But so does the transitory nature of these divisions. The political carnival will roll on. The drums will fade. What will be left is the voter with maybe a few unfulfilled promises.